and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss bumper 100 MCQs related to the e-learning platforms by Government of India. It is very useful one. Many platforms actually created by the government so that e-contents, video, audio, assignment, thesis, everything it is available in different platforms like Nishtha, like Swayam, like Diksha. So many platforms already. Today I uploaded one video. So in regarding to this also, today I will discuss 100 bumper MCQs, and definitely it is useful for you for different exams like CTET, UGC NET principal, vice principal exam, state eligibility test for teachers in state boards. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. So this session definitely would be interesting one. So follow my Facebook page. It is Asit Government Tool Guru. If you follow my Facebook page, then systematically you can get video links. My WhatsApp number, it is 8327782034. If any queries there, you can contact with me and clear your doubt. Now I am going to discuss 100 MCQs related to the e-learning platforms by the Government of India. Question number 1. Which of the following is a flagship e-learning platform launched by the Government of India for school education? स्कूल एजुकेशन के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग. इसमें आपको स्टैंडर्ड 1 to 12, ओके, स्टैंडर्ड 1 to 12 NCERT syllabus, also state government also syllabus. So first of all, 1 to 12 NCERT syllabus standard wise e-contents available, and also in Diksha portal, you know, for continuous professional development of teachers, many training modules are there, and easily you can track it, you can check your progress, and certificate would be issued, and first on this portal collect your profile and everything, and certificate would be issued. And you know that now according to NEP, the teachers should complete 50 hours training during a year, minimum 50 hours training, and different e-contents available in multiple languages, okay, for the students. So quality contents available for the students. So answer is option C is the correct answer. Question number 2. Swayam is primarily aimed at providing courses for which of the following levels? You know, study, इसका full form में थोड़ा बता देता हूँ. Study waves of active learning for young aspiring minds. और एक बार बता रहा हूँ, study wave of active learning for young aspiring minds is a primarily aimed at. It is a very good platform. Basically स्वयं higher education and lifelong learning को emphasize कर रहा है, और इसमें school education का बात आएगा. It is standard 9 to 12, आप याद रखना है. Contents, e-contents available for it means standard 9 to 12, okay, in Swayam. Basically higher education, it means undergraduate, postgraduate, and other various discipline, high quality contents available, okay. So option C is the correct answer. Question number 3. यहाँ पर स्वयं का फुल फॉर्म बता रहे, अभी बताया था. Option A, study waves of active learning for young aspiring minds, is a big platform, basically for higher education, school education 9 to 12, and then graduation, post graduation, and other disciplines. E-contents available. There is massive open online courses, massive MOOCs actually, massive open online courses, okay, available in Swayam portal, okay. Assessments, quizzes, also it means group discussion also, it means week wise also, it means basically the students, they can face, and they assess themselves, they evaluate themselves. So massive online, it means valuable quality sources available in Swayam portal, okay. So option A is the correct answer.
Question number 4. Which initiative provides free online certification courses developed by IITs and Indian Institute of Science? Okay, आप ऑप्शन देखिए, NPTEL is the answer. NPTEL, it means full form National Program on Technology, National Program on Technology, Enhanced Learning. It is technology, enhanced learning. Okay, this platform actually created by IIT Chennai collaborate with Indian Institute of Science. ठीक है, सो इसमें ये जो प्लेटफॉर्म है, जो NPTEL प्लेटफॉर्म है, बेसिकली नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ये जो प्लेटफॉर्म है एक्चुअली इसको क्रिएट किया था IIT चेन्नई ने. इसके ऊपर क्वेश्चन मिल सकता है आपको. कोलैबोरेशन विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. सो इसमें ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. इसमें क्या है, बेसिकली ये प्लेटफॉर्म में जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, जो साइंस स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल ई कंटेंट्स है. ओके, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो उसको बेस करके कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया जाएगा, इट मीन्स टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन के साथ, बेसिकली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में और साइंस डिसिप्लिन में, इसमें वो कंटेंट्स अवेलेबल है NPTEL में. तो वही है, which initiative provides free online certification courses available. Okay, very valuable courses available, particularly for the engineering students and science students. They can go to this portal and attempt courses and also get certificates. Okay, so it is very important one. Option C is the correct answer. Question number 5. Which e-learning platform is specifically aimed at school level education, K-12? It means standard 1 to 12. It is Diksha, digital infrastructure for knowledge sharing. मैं बताया था ग्रेड वाइज ई कंटेंट्स अवेलेबल है यहाँ पर, स्टैंडर्ड 1 to 12. ओके, स्कूल एजुकेशन के ऊपर वैल्यूएबल क्वालिटेटिव कंटेंट्स अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए. ओके, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में ई कंटेंट अवेलेबल है. NCERT सिलेबस ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट सिलेबस ऑल्सो, इसमें कोलैबोरेशन है. स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस का ई कंटेंट भी मिल जाएगा. ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. NPTEL इज एन इनिशिएटिव बाय व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूशन? में बताया था IITs एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. इसमें बेसिकली ये जो NPTEL है, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली इसको क्रिएट किया था IIT चेन्नई ने, कोलैबोरेट विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. एंड बेसिकली यहाँ पर जो कोर्सेस मिलता है टू फस्टर द लर्निंग एनहांसमेंट ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स. तो इसमें बहुत कुछ ही कंटेंट मिलेगा, कोर्सेस मिलेगा, और आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा. तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, बेसिकली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स. इसलिए ये नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग. सो बेसिकली फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस स्टूडेंट्स. ओके, क्वालिटी कंटेंट्स अवेलेबल है, सो दे कैन प्रमोट देयर नॉलेज, they can enhance their knowledge, right? Option C is the correct answer. Question number 7. The e-PG Pathshala platform has been developed by under which body? So इसमें the e-PG Pathshala platform आ जाता है तो UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ओके, ये प्लेटफॉर्म में बेसिकली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए ई कंटेंट्स अवेलेबल है, वैल्यूएबल ई कंटेंट्स अवेलेबल है, valuable courses available है e-PG Pathshala platform. And this platform has been developed by UGC and funded by the Ministry of Education, right? So option C is the correct answer. Question number 7. e-PG Pathshala is an initiative under which mission? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. under which mission? मिशन का बात आएगा यहाँ पर, एक नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन हाइपेन इंफॉर्मेशन एंड ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इस मिशन के तहत e-PG पाठशाला इनिशिएटिव को लाया गया था. ठीक है, NME
हाइपेन ICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। व्हिच पोर्टल वाज लॉन्च्ड टू फैसिलिटेट डिजिटल डोनेशन ऑफ ई लर्निंग कंटेंट बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। आप ई कंटेंट डोनेट करेंगे, चाहे इंडिविजुअल्स हो चाहे इंडिविजुअल, सपोज एकेडमिशियन, educators, intellectual people, faculties of top reputed institutions like IIT, IIM, right, AIMS, or organizations, you can gift e-contents। तो क्या पोर्टल है? तो विद्यादान है, ठीक है। विद्यादान एक पोर्टल है जहां पर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, दे कैन गिफ्ट ई कंटेंट। सो आप गिफ्ट करेंगे, वो ई कंटेंट अवेलेबल होगा विद्यादान में, और वो यूजफुल होगा स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर रोल आ जाता है जो एकेडमिशियन है, जो एडुकेटर्स है, जो फैकल्टीज ऑफ रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, दे कैन गिफ्ट एक्चुअली देयर कंटेंट्स टू विद्यादान पोर्टल, ओके। देन वो अवेलेबल होगा ओके मैसिवली स्टूडेंट्स के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द ई पाठशाला। ई पाठशाला प्लेटफॉर्म अगेन स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, स्टैंडर्ड 1 to 12 स्टूडेंट्स के लिए ई कंटेंट्स अवेलेबल है, और डिफरेंट एक्टिविटीज है, असेसमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, आप क्विज फेस कर सकते हो, स्टूडेंट्स क्विज फेस कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब आ जाता है ई पाठशाला प्लेटफॉर्म। इसको NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके, ई पाठशाला प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है। इसमें मैसिव ऑनलाइन इट मीन सोर्सेस है, मैसिव ई कंटेंट्स अवेलेबल है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 12, और बाकी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, क्विजेस, ये सब आप स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं और उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 11, which portal by NCERT provides educational resources such as textbooks, videos and audios for school students। ये बात जब आ जाता है तब ई पाठशाला। तो ये जो ई पाठशाला है, जो मैं अभी बताया था, जो NCERT ये इनिशिएटिव, कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव लिया है, इसमें ई कंटेंट्स अवेलेबल है, वीडियोज है, ऑडियोज है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स है, असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट्स है, बहुत कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और टेक्स्ट बुक्स, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी है। दीक्षा का जो फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 2017 में एक्चुअली पोर्टल को क्रिएट किया गया था। तो उसमें क्या है, दो फर्स्ट वन एक स्टूडेंट्स के लिए, students actually they can get varieties of e-contents in different regional languages. Another one teacher side में also it means they can get it means the training modules. So many training modules are available, and teachers actually they should get proper information about the different topics, और होने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी इशू होगा, और वो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। NROER इज एन इनिशिएटिव बाय व्हिच इंडियन बॉडी। इसका जो डेफिनेशन बता देता हूं, इट इज नेशनल रिपोजिटोरी, ठीक है, नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, एजुकेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। इसमें ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैसिव ई कंटेंट्स अवेलेबल है अगेन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे तो स्कूल स्टूडेंट्स आ जाते तो NCERT, ओके। आपको बहुत कुछ ई कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो उसका फुल फॉर्म आपको मिल गया, नेशनल रिपोजिटोरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को चलेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजिटल रिपोजिटोरी ऑफ लर्निंग रिसोर्सेस डेवलप्ड बाय IGNOU।
कुछ लर्निंग रिसोर्सेस इग्नोर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वो रिसोर्सेस डेवलप किया है। तो क्या वो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है? ई ज्ञानकोश। आप देखिए ये जो ई ज्ञानकोश है उसको इग्नो ये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है, जिसमें बेसिकली जो ओपन एजुकेशन ले रहे हैं इग्नो में उनके लिए लर्निंग मटेरियल्स मिल जाता है ई ज्ञानकोश में। ठीक है, तो ई कंटेंट्स मिल जाता है जो इग्नो का सिलेबस के हिसाब से वहां पर लर्निंग मटेरियल्स मिल जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच प्लेटफॉर्म इज डिजाइन्ड टू प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑनलाइन? तो यहां पर दो चीज, एक वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑनलाइन, ये बात आता है तो स्किल इंडिया पोर्टल है। इसमें आपको ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वोकेशनल एजुकेशन है और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी ट्रेनिंग मिलता है ऑनलाइन में, और उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये स्किल इंडिया पोर्टल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, स्वयं प्रभा प्रोवाइड्स एजुकेशनल कंटेंट थ्रू। तो स्वयं प्रभा का बाद जब आएगा एजुकेशनल कंटेंट सैटेलाइट टीवी चैनल्स। ठीक है, बहुत इजी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी डीटीएच चैनल्स डेडिकेटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल कंटेंट? जब स्वयं प्रभा स्टार्ट हुआ था उसमें डीटीएच चैनल्स 32 से स्टार्ट हुआ था। स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी डीटीएच चैनल्स डेडिकेटेड टू टेलीकास्टिंग एजुकेशनल कंटेंट? पूरा स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड 1 to 12 कंटेंट के लिए आपको चैनल नंबर के हिसाब से आपको पर्टिकुलर क्लास का जो कंटेंट को वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा और आप डीटीएच चैनल्स में उसको देख सकते हो और बहुत क्वालिटेटिव मटेरियल्स है। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज इज मैनेज्ड बाय, इसको कौन मैनेज कर रहा है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनसीईआरटी एंड सीआईईटी। सीआईईटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सीआईईटी कोलैबोरेशन किया था एनसीईआरटी के साथ, और ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को किया गया है, क्रिएट किया गया है, इसमें मैसिव इट मींस ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल है, ई कंटेंट्स अवेलेबल है, चाहे ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट बुक्स है, डिजिटल टेक्स्ट बुक्स है, और डिफरेंट ई कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट्स अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स, ओके, स्कूल स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, द नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के ऊपर आ गया, इज डेवलप्ड बाय व्हिच? तो आप जानते हो जो एनडीएलआई है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, ये आईआईटी खड़गपुर ने उसको डेवलप किया था। इसमें क्या है, एक मिशन जो नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन हाइपन आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके तहत एक्चुअली एनडीएलआई को ये प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया गया था। इसमें आपको जर्नल्स मिलेगा, आपको डिफरेंट ई कंटेंट्स मिलेगा, पूरा स्टैंडर्ड 1 to अप टू पीएचडी लेवल, स्टैंडर्ड 1 to पीएचडी लेवल आपको ई कंटेंट्स मिलेगा, आपको ई जर्नल्स मिलेगा, आपको ई असाइनमेंट्स मिलेगा, ई प्रोजेक्ट्स मिलेगा। ठीक है, वेराइटीज ऑफ लर्निंग मटेरियल्स एक्चुअली अवेलेबल, सो इजीली इट मीन्स द स्टूडेंट्स from standard 1 to PhD level they can avail learning resources from NDLI. ओके, तो इस मिशन के तहत एक्चुअली NDLI को डेवलप किया था आईआईटी खड़गपुर ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 को चलेंगे। Which of the following e-learning platforms provides MOOCs, massive open online courses for higher education? अच्छा, हायर एजुकेशन का बात आएगा स्वयं। ये जो स्वयं वो पूछा है, which of the following e-learning platforms provides MOOCs? MOOCs means massive open online courses. So massive open online courses available in स्वयं प्लेटफॉर्म। स्वयं प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे स्टैंडर्ड 9 to 12, देन आपका अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस, इट मीन्स हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट डिसिप्लिन में ई कंटेंट्स अवेलेबल है स्वयं पोर्टल में। तो इसीलिए ये जो
Okay, which of the following e-learning platforms provides massive open online courses for higher education? It is Swayam. Option B is the correct answer. Okay, Swayam का और एक बार बोलो, study waves of active learning for young aspiring mind. Okay. Question number 21. Which platform aims to assist teachers in creating and sharing digital content for school education? असिस्ट टीचर्स इन क्रिएटिंग एंड शेयरिंग डिजिटल कंटेंट, भाई दीक्षा का बात आ जाता है, क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो टीचर्स ने गिफ्ट के आकार में ई कंटेंट्स देंगे दीक्षा पोर्टल में, ठीक है। तो टीचर्स ने ई कंटेंट्स क्रिएट करेंगे और उसको शेयर करेंगे डिजिटल कंटेंट को, क्योंकि दीक्षा पोर्टल में एवरी ग्रेड के लिए ई कंटेंट्स अवेलेबल है, ठीक है, वेराइटीज ऑफ इन डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस, और टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, आप जानते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22. व्हिच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटेंट? अगेन आ गया टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट कंटेंट आ जाती तो दीक्षा पोर्टल में आप देखिए, मोबाइल में डाउनलोड किया है अभी मैक्सिमम, आप एनवीएस देखिए, केवीएस देखिए, ईएमआरएस देखिए, आप डेली बोर्ड्स देखिए, जो दिल्ली के अंडर जो स्कूल्स है, अदर स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से, दीक्षा पोर्टल में मेनी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है। तो अभी एनईपी बोला है कि मिनिमम 50 आवर्स सीपीडीटी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको ट्रेनिंग लेना है, और वो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दीक्षा पोर्टल में अवेलेबल है। आप आपका प्रोफाइल दे दीजिए और आप वहां पर आप मॉड्यूल्स को या इट मीन्स कंप्लीट कीजिए। मॉड्यूल्स कंप्लीट करने के बाद आप आपका प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, इसके हिसाब से आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है, और कितना आवर का ट्रेनिंग वहां पर भी मेंशन होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 23. Which of the following platforms is primarily used for open access to IGNOU materials? IGNOU materials e-ज्ञान कोर्स, आप जो IGNOU में ओपन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वन सर्टिफाइड, इट मीन्स ओपन कैटेगरी यूनिवर्सिटी है, उसमें उसका जो सिलेबस बहुत टॉप होता है, और वो सिलेबस का मटेरियल जो है ई कंटेंट्स ई-ज्ञान कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 24. Which body is responsible for content regulation and coordination on the Swayam platform? Which body is responsible for content regulation and coordination on the Swayam platform? बहुत कोऑर्डिनेटर्स है, जैसे एनपीटेल है, एनपीटेल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। तो टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, इसमें आपको इंजीनियरिंग साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये सब ई कंटेंट्स आएगा, इग्नो का मटेरियल आ जाता है, एनसीईआरटी, इट्स राइट, जो कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है, ये सब कोऑर्डिनेटर्स एक्चुअली स्वयं प्लेटफॉर्म में है। जैसे मैं बता रहा हूं, जो स्वयं प्लेटफॉर्म में जो 9 to 12 स्टैंडर्ड 9 to 12 का जो कंटेंट्स होता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है एनआईओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये जो एनआईओएस उसका मेन कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि ओपन स्कूल में ज्यादातर ई कंटेंट का मटेरियल चाहिए, जो ओपन स्कूल का जो कैंडिडेट्स है उनको ई कंटेंट चाहिए, और इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेटर एनआईओएस है, और वो एक्चुअली मैनेज करता है स्वयं प्लेटफॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड 9 to 12। सिमिलरली एनपीटेल है, इग्नो है, एनसीईआरटी, ये सब कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आईआईटीज है, इसमें आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग है, इग्नो है, एनआईओएस है, ये सब कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है। तो उनका जो ई कंटेंट्स अवेलेबल होता है किसमें, स्वयं प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25. व्हिच प्लेटफॉर्म ऑफर्स मल्टीलिंगुअल लर्निंग रिसोर्सेस एंड इंक्लूसिव एजुकेशन कंटेंट फॉर लर्नर्स विथ डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का यहां पर जो आंसर है वो NROER है। इसमें क्या है, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, N फॉर नेशनल, R फॉर रिपोजिटरी, ऑफ O फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। इसमें डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर एम्फासाइज किया गया है। इंक्लूसिव एजुकेशन इट मीन्स ऑल फॉर डिसेबल कैंडिडेट्स, फॉर हैंडिकैप्ड कैंडिडेट्स ऑल्सो ई कंटेंट्स अवेलेबल। तो इसमें दे दिया इंक्लूसिव एजुकेशन कंटेंट फॉर लर्नर्स विथ डिसेबिलिटीज, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है, ठीक है, कोई सपोज ब्लाइंड है, ये इनके लिए क्या है, यहाँ पर बेसिकली ई कंटेंट्स मिल जाएगा।
ये बेसिकली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है NROER। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप ध्यान से दीजिए, यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज में लर्निंग रिसोर्सेज, डिफरेंट लैंग्वेज का लर्निंग रिसोर्सेज मिलता है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एम्फासाइज किया है इंक्लूसिव एजुकेशन। इट मीन इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स जो लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए कंटेंट भी अवेलेबल है, ठीक है। तो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 को चलेंगे। व्हिच इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एज पार्ट ऑफ पीएम ई विद्या टू प्रोवाइड एजुकेशन थ्रू रेडियो, टीवी एंड ऑनलाइन मीडिया ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक टाइम में एक पीएम ई विद्या जो टीवी चैनल्स आया था, और जहां पर थोड़ा इंटरनेट नेट फैसिलिटी थोड़ा कम है, वहां पर भी रेडियो में आप सुन सकते हो, और डिफरेंट टीवी चैनल्स में बेसिकली जो स्कूल लेवल का एजुकेशन जो कंटेंट है उसको एक्सप्लेन किया जाता है। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत ये आया था, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत, आप देखिए जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन है उसमें एक्चुअली कोविड टाइम में पीएम ई विद्या को लॉन्च किया गया था, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ठीक है। और उसका मेन जो एजेंडा था वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इजी है। NROER फुल फॉर्म नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय AICTE फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसोर्सेज। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये है ना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो which of the following is the platform developed by AICTE for technical education resources? टेक्निकल एजुकेशन रिसोर्सेज के लिए AICTE ने कौन सा प्लेटफॉर्म डेवलप किया था? वो है NEAT, नेशनल एजुकेशनल अलायंसेस फॉर टेक्नोलॉजी। ओके, ये प्लेटफॉर्म है, इसको देख लीजिए, नेशनल, ठीक है, एजुकेशनल, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशनल अलायंस, ठीक है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया था AICTE ने। टेक्निकल रिसोर्सेस यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। ओके, टेक्निकल एजुकेशन का जो रिसोर्सेस है यहाँ पर अवेलेबल है, तो टू बेसिकली टू एनहांस द लर्निंग रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 29 को चलेंगे। विद्यादान में क्या है, आप गिफ्ट करेंगे जो ई कंटेंट आप बनाएंगे, जैसे एकेडमिशियन है, एडुकेटर्स है, फैकल्टीज ऑफ रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है, एनी अदर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो ई कंटेंट्स को विद्यादान इट मींस इसी पोर्टल को गिफ्ट करेंगे। तब इसी पोर्टल से क्या होगा, स्टूडेंट्स वो ई कंटेंट को अवेल करेंगे, ठीक है। तो क्राउड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज क्राउड सोर्सिंग ई लर्निंग कंटेंट फ्रॉम एडुकेटर्स। आप गिफ्ट के आकार में ई कंटेंट दे दीजिए विद्यादान पोर्टल में, तब वो स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 को चलेंगे। हु इज द नोडल एजेंसी फॉर स्कूल एजुकेशन कंटेंट ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म। तो बहुत है, स्कूल एजुकेशन का बात जब आता है, कंटेंट का बात आता है, NCERT, ठीक है। नोडल एजेंसी NCERT होता है फॉर स्कूल एजुकेशन कंटेंट ऑन द स्वयं प्लेटफॉर्म। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्कूल एजुकेशन बेसिकली एम्फासाइज 9 to 12 स्टैंडर्ड, 9 to 12, right? Question number 31, the ICT in education, information and communication technology in education curriculum is developed by which of the following for teachers and students? ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है CIET NCERT। CIET में बताया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट विद NCERT, वो ICT एजुकेशन को ज्यादा प्रमोट किया है। तो ये वही दिया है, ICT ने एजुकेशन जो आया है अभी, ICT जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो ICT क्लासेस चल रहा है, ये इनका दान है, CIET NCERT कोलैबोरेशन में आया है, ठीक है, बोथ फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, which digital initiative by the government of India aggregates resources from multiple portals like NDLI, National Digital Library of India, eSodh Sindhu and more?
तो व्हिच डिजिटल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीगेट्स रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज को, एनडीएलआई का लर्निंग मटेरियल, ई शोध सिंधु का लर्निंग मटेरियल, ये सबको गैदर किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 को चलेंगे। Which Indian e-learning initiative offers credit transfer for courses completed online via स्वयं? ओके, तो ऑप्शन सी यूजीसी स्वयं रेगुलेशंस। आप देखिए स्वयं पोर्टल में आप कोई भी कोर्स आप कंप्लीट किया, यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से कोर्स कंप्लीट किया और पेमेंट देकर आप एग्जामिनेशन फेस किया और उसमें आपको सर्टिफिकेट मिला, वो यूजीसी गाइडलाइन के हिसाब से वो वैलिड है यूनिवर्सिटी में। तो जो 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 पोर्शन का कोर्स के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिला वो वैलिड है। ओके, वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के आकार में रहेगा। उतना सिलेबस आप स्वयं पोर्टल में क्रिएट कर दिया है, सर्टिफिकेट मिला है, तो वो फिर आप जब यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करोगे वो पोर्शन सिलेबस आपको नहीं चाहिए क्योंकि आप कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, और वो वैलिड होगा। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की तरह। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर एक अर्पित का बात आता है। अर्पित क्या है? एनुअल, इसका फॉर आप देख लीजिए, इसका फुल फॉर्म एनुअल रिफ्रेशर, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम। ओके, एपीआर आ गया, आईटी इन टीचिंग, इन टीचिंग। ठीक है, ए फॉर एनुअल, पी फॉर आर फॉर रिफ्रेशर प्रोग्राम, पी फॉर प्रोग्राम, आई इन टीचिंग। तो इसमें क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का फैकल्टी है, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो फैकल्टी मेंबर्स है, यहां पे इस पोर्टल में उनको ट्रेनिंग मिलता है, रिफ्रेशर कोर्स, जो उनका जो कंटेंट एनरिचमेंट के ऊपर। ओके, तो इट मींस रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिलता है। ठीक है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अर्पित का बात जब आएगा, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, इसमें बेसिकली आपको ध्यान देना है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फैकल्टी, उनको रिफ्रेशर कोर्स ऑनलाइन में मिलता है। ठीक है, और सर्टिफिकेट मिलता है। तो हम जानते हैं रिफ्रेशर कोर्स कंटेंट एनरिचमेंट, तो हम जो न्यू कंटेंट से तो उसको कैसे आप इट मींस टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन कैसे होगा, जो जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको कैसे आप जो न्यू कंटेंट के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो बेसिकली हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फैकल्टी मेंबर्स के लिए ये ऑनलाइन रिफ्रेशर ट्रेनिंग होता है अर्पित पोर्टल में। ठीक है, तो इसमें ये जो पोर्टल क्रिएट किया गया था बेसिकली यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, और फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये पोर्टल को क्रिएट किया गया था। तो इसमें आपको आंसर मिल गया, बेसिकली रिफ्रेशर कोर्सेस फॉर फैकल्टी इन हायर एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 35, यहां पर निष्ठा का बात आया, स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स। अब देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये इसमें दो चीज आ जाता है, एक स्कूल हेड्स के लिए आ जाता है और टीचर्स के लिए आ जाता है। कैसे उनका होलिस्टिक एडवांसमेंट होगा? ऑप्शन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल इनिशिएटिव स्कूल, देखिए स्कूल हेड्स, टीचर्स, होलिस्टिक एडवांसमेंट। होलिस्टिक एडवांसमेंट मींस इसमें वो कैसे स्टूडेंट्स का जो होलिस्टिक एडवांसमेंट मींस इसमें क्या है, मेन चीज है आपको देखना होगा कि ये जो निष्ठा का जो ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, वो बेसिकली उसका जो कंटेंट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसमें क्या है, जो हेड ऑफ द जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, वो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं। ठीक है, वो कैसे उनका कॉम्पिटेंसी से कैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, थॉट प्रोवोकिंग है, हाइपोथेटिकल स्किल है, वो कैसे डेवलप होता है चाइल्ड का माइंड में, तो ये ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट वन हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और टीचर्स को ट्रेनिंग मिलता है। ओके, तो निष्ठा का जो कोर्स है, और ये मिलने के बाद एक्चुअली वो दे आर हाईली कॉम्पिटेंट वन,
principal and teachers, they are highly competent one, so that actually it means they guide their children, they play the mentorship role. ठीक है, they guide their children so that critical thinking, thought provoking, problem solving, hypothetical skills of the students actually promoted due to this. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेन चीज है। और ये भी ट्रेनिंग होता है कैसे, जो सोशल इमोशनल, जो बेसिकली जो इमोशनल पार्ट होता है चाइल्ड का, कि सोशल पार्ट होता है, उसको कैसे आप स्टडी करेंगे, जो चाइल्ड इमोशनली डाउन है उसको आप कैसे डिटेक्ट करेंगे और उसको बूस्टिंग करेंगे। ठीक है, और एक चाइल्ड को सोशल बैकग्राउंड को सोचकर वो चाइल्ड को कैसे आप स्ट्रांग करोगे, वो जाकर सोसाइटी में स्टैंड करेगा कल। तो ये सब चीज को भी ट्रेनिंग मिलता है निष्ठा से। ठीक है, तो बहुत है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 36 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द निष्ठा प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली निष्ठा का बात आता है तो एनसीईआरटी, क्योंकि यहां पर प्रिंसिपल, ओके, स्कूल हेड, एसएच स्कूल हेड है, टी है टीचर्स, होलिस्टिक एडवांसमेंट, तो एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 37 को चलेंगे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द निष्ठा इनिशिएटिव। मेन ऑब्जेक्टिव वही है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। तो फर्स्ट वन, टीचर्स को ट्रेनिंग मिलता है, जो निष्ठा इनिशिएटिव है, टीचर्स को अच्छा ट्रेनिंग मिलता है। ओके, वो कैसे, हाउ कैन दे गिव मोर स्ट्रेंथ टू द स्टूडेंट्स। ओके, सो फर्स्ट वन, the head of the institution and teachers should be competent one. Okay, they must be capable to it means foster it means the learning of the child, to enhance the learning outcome, to it means properly prepare the children. तो फर्स्ट वन उनको ट्रेनिंग मिलता है निष्ठा से, जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है और टीचर से। देन वो क्या करते हैं, आज मेंटर्स एक्चुअली दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल, ओके, टू गिव मोर स्ट्रेंथ टू द स्टूडेंट्स। ओके, वो सोशली कैसे स्ट्रांग रहेंगे, इमोशनली कैसे स्ट्रांग रहेंगे, साइकोलॉजिकली कैसे स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है, कैसे टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके वो कैसे इट मीन्स नॉलेज एक्वायर करेंगे। ठीक है, उनका कैसे अच्छा प्लानिंग रहेगा, जो प्रिपरेशन रहेगा, अच्छा प्लानिंग प्रिपरेशन रहेगा, और वो कोई भी चीज को कैसे एनालाइज करेंगे। सो क्रिटिकल थिंकिंग को जोड़ दिया, कैसे लॉजिकल रीजनिंग है, कोई हाइपोथेटिकल स्किल्स है, वो कैसे डेवलप होगा अमंग द स्टूडेंट्स। वो इसमें मेन रोल है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द टीचर्स, उसके लिए उनको ट्रेनिंग मिलता है निष्ठा से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ निष्ठा कोर्सेस। ऑनलाइन डिलीवरी का बात आता है तो दीक्षा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन अभी जानते हो, तो दो चीज, स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज में मिल जाता है, और टीचर्स के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग मिलता है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो उसका मेन, निष्ठा का मेन प्लेटफॉर्म है दीक्षा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39, इन व्हिच ईयर वाज द निष्ठा इनिशिएटिव लॉन्च्ड। निष्ठा इनिशिएटिव लॉन्च 2029, क्योंकि दीक्षा 2017 और निष्ठा जो इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ 2019। ठीक है, ऑप्शन सी। 40, निष्ठा ट्रेनिंग इंक्लूड्स हाउ मेनी मॉड्यूल्स। ओरिजिनल वर्जन में हम देखेंगे, इन द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द एलिमेंटरी लेवल, इन द ओरिजिनल वर्जन फॉर एलिमेंटरी, क्योंकि निष्ठा 1 जो है एलिमेंटरी, जो टीचर्स फॉर टीचर्स स्टैंडर्ड 1 to 8, ओके, जो निष्ठा 1 होता है। ठीक है, निष्ठा पॉइंट 1 में एलिमेंटरी टीचर्स, पॉइंट 2 में यहां पर सेकेंडरी एजुकेशन, पॉइंट 3 में FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। नहीं, तो उसमें एलिमेंटरी लेवल में 33 है, इन द ओरिजिनल वर्जन फॉर एलिमेंटरी लेवल 33 मॉड्यूल्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 41, निष्ठा 2 एम्ड एट व्हिच लेवल ऑफ एजुकेशन, सेकेंडरी, क्योंकि निष्ठा 1 है एलिमेंटरी, एलिमेंटरी एजुकेशन मींस टीचर्स ट्रेनिंग। ओके, इसका 1 का बाद जब आएगा एलिमेंटरी टीचर्स, ये आ जाएगा एलिमेंटरी टीचर्स स्टैंडर्ड 1 to 8, देन आ जाएगा स्टैंडर्ड 9 to 12 सेकेंडरी, एंड जो निष्ठा ये है सेकेंडरी एजुकेशन निष्ठा 2 है, निष्ठा 3 जो है
वो FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का बात आता है, ठीक है। ये सब टीचर्स ट्रेनिंग रिलेटेड है। तो टीचर्स ट्रेनिंग फॉर एलिमेंटरी एजुकेशन निष्ठा 1, निष्ठा 2 टीचर्स ट्रेनिंग फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, एंड थर्ड जो है टीचर्स ट्रेनिंग फॉर FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी निष्ठा 3। 42 which organization is primarily responsible for developing and implementing स्वयं। स्वयं को बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया is primarily responsible for developing and implementing Swayam. Option C is the correct answer. 43. What is the main purpose of Swayam? So main purpose of Swayam is providing free online education to students across India. ठीक है, option B is the correct answer. Question number 44. Which platform is used to host Swayam courses? ठीक है, दीक्षा स्वयं पोर्टल है, बहुत इजी है, उसका पोर्टल खुद का पोर्टल है। ओके तो स्वयं पोर्टल एक्चुअली होस्ट स्वयं कोर्सेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर स्वयं। इसमें कौन सा है नेशनल कोऑर्डिनेटर? एनपीटेल नेशनल कोऑर्डिनेटर, इग्नो है, एनसीईआरटी, इसरो नहीं है। इसमें सब नेशनल कोऑर्डिनेटर, एनपीटेल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स के लिए जो ई कंटेंट्स होता है, ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए ई कंटेंट होता है बेसिकली। ये नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। इग्नो उसका जो ओपन कैंडिडेट्स है, जो कैंडिडेट्स एक्चुअली ओपन एजुकेशन ले रहे हैं एनसीईआरटी स्कूल लेवल में, ये सब कोऑर्डिनेटर्स है। तो उनका अंडर में सब ई कंटेंट एक्चुअली डेवलप होता है और स्वयं पोर्टल में बेसिकली ई कंटेंट्स अवेलेबल होता है, ओके, फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सो ऑप्शन डी यहां पर होगा, इज नॉट ए नेशनल कोऑर्डिनेटर। 46 को चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल स्वयं कोर्स? टिपिकल स्वयं कोर्स जो होता है ड्यूरेशन 4, 8 और 12 वीक्स। ओके, 4, 8 और 12 वीक्स मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ ए टिपिकल स्वयं कोर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑफ 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल कोऑर्डिनेटर्स इज रिस्पांसिबल फॉर स्कूल लेवल स्वयं कंटेंट? स्कूल लेवल स्वयं कंटेंट के लिए जो कोऑर्डिनेटर है वो NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ओके, तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS एक्चुअली वो मेन कोऑर्डिनेटर से, ओके, जो स्वयं पोर्टल में जो कंटेंट होता है और बेसिकली ओपन स्कूल जो स्टूडेंट्स एक्चुअली दे परस्यू देयर कैरियर, तो उनका मेन कोऑर्डिनेटर होता है स्कूल एजुकेशन में स्वयं कंटेंट, वो NIOS है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इज देयर ए प्रोविजन फॉर सर्टिफिकेशन इन स्वयं कोर्सेस? हाँ, जो सर्टिफिकेशन है आपको फी देना पड़ेगा, फी देकर आप एग्जाम फेस करेंगे और उसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ऑप्शन बी एस आफ्टर पासिंग द प्रोक्टर्ड एग्जाम। प्रोक्टर्ड एग्जाम मींस फी पेमेंट करना पड़ेगा। आप जो एग्जाम फेस करोगे वो फ्री में नहीं है, इसके लिए आपको फी देना पड़ेगा और जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो यूजीसी गाइडलाइन में वैलिड है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 49 को चलेंगे। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द शोध गंगा? ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ शोध गंगा, इट इज बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए। तो ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड ए डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन थेसिस एंड डिसर्टेशंस। एक्चुअली तो जो PhD होल्डर्स है उनका जो थेसिस होता है और उनका जो डिसर्टेशंस होता है उसमें शोध गंगा में मिल जाता है, ठीक है। शोध गंगा ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसमें जो ई कंटेंट मिलता है बेसिकली, जो थेसिस है, जो डिसर्टेशन है, ओके, जो PhD स्कॉलर्स का, ये यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शोध गंगा का बात आएगा, आपको थोड़ा हायर एजुकेशन के साथ उसको लिंक करना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 50 यहां पर आ जाता है, शोध गंगा इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? तो ऑप्शन सी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। INF जो है ना, ये इंफॉर्मेशन है, और एंड LIB जो है लाइब्रेरी, और नेट लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। ये मेनली जो ये इसका है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म है शोध गंगा, जिसमें आपको कोई भी थेसिस चाहिए, कोई टॉपिक रिलेटेड थेसिस चाहिए, कोई डिसर्टेशन चाहिए, आप इस प्लेटफॉर्म में जाइए और उसको फॉलो कीजिए, ओके। वो कैसे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर थेसिस कैसे बनाया गया है,
और कैसा डिसर्टेशन से आप कैसे बनाएंगे, आपका जो टॉपिक के ऊपर आप क्या क्रिएट करेंगे, आप क्या डिस्कवरी किया है, और आप थेसिस का कैसे प्लानिंग होता है, थेसिस आप कैसे बनाएंगे, तो उसके ऊपर पूरा आइडिया मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51। प्लीज माय फ्रेंड्स, अभी 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिया, और 50 क्वेश्चन से प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर माय अपकमिंग वीडियोस प्लीज। क्वेश्चन नंबर 51। अगेन शोध गंगा was launched under the initiative of which body? तो बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये इसको लॉन्च किया है। बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क जो है उसका मेनली उसका अंडर में, अंडर द गाइडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के शोध गंगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ थेसिस मिलेगा और डिसर्टेशंस मिलेगा। ओके, जो फिलोसॉफी इन डिग्री जो पीएचडी स्कॉलर्स का। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 52 व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज होस्टेड ऑन द शोध गंगा प्लेटफॉर्म? तो ये तो बहुत इजी है, बता चुका। ऑप्शन सी, थेसिस एंड डिसर्टेशन सबमिटेड बाय रिसर्च स्कॉलर्स इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 53 व्हिच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट्स मोस्ट डायरेक्टली टू द कंटेंट ऑन शोध गंगा? वही आता है रिसर्च स्कॉलर्स एंड यूनिवर्सिटीज, उनका ही थेसिस जाएगा, जो रिसर्च स्कॉलर्स है उनका ही थेसिस, उनका ही डिसर्टेशन जाएगा शोध गंगा में, उनका ही जो कंटेंट है वो शोध गंगा में अवेलेबल होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द दीक्षा प्लेटफॉर्म? दीक्षा प्लेटफॉर्म में ई कंटेंट अवेलेबल है, क्लासेस 1 to 12, टीचर ट्रेनिंग है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोचिंग नहीं है इसमें। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोचिंग नहीं है, क्यूआर कोड एनाबल टेक्स्ट बुक एक्सेस है, टेक्स्ट बुक एक्सेस कर सकते हो आप क्यूआर कोड। ठीक है, तो ये एक्चुअली यहां पर इज नॉट एसोसिएटेड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये एसोसिएट नहीं है और सब एसोसिएट है। ठीक है, 55 दीक्षा प्लेटफॉर्म इज मैनेज्ड बाय ऑब्वियसली एनसीईआरटी। ओके, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 56 को चलेंगे, ई पाठशाला। ये ई पाठशाला भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वही स्कूल एजुकेशन स्टैंडर्ड 1 to 12 के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, उसमें डिजिटल बुक्स, ऑडियोज, वीडियोज ये सब मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक ऑप्शन दे दिया, ये प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, नो। एन ऐप फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन स्कूल असाइनमेंट्स, नो। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर असेसिंग स्कूल टेक्स्ट बुक्स एंड ई कंटेंट, ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट वन है पोर्टल फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशंस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 57 ई पाठशाला इज एन इनिशिएटिव बाय, तो ऑब्वियसली इनिशिएटिव एनसीईआरटी, क्योंकि स्कूल एजुकेशन को इंपोर्टेंस दिया ही पाठशाला, जो एनसीईआरटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 58 ई पाठशाला वाज लॉन्च्ड इन व्हिच ईयर? 2015। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 59 ई पाठशाला प्राइमरली प्रोवाइड्स एजुकेशनल कंटेंट फॉर, किसको एजुकेशनल कंटेंट देता है? स्कूल स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स। ओके, ये जो एजुकेशनल कंटेंट देता है, ई कंटेंट्स स्टूडेंट्स को देता है, टीचर्स को और पेरेंट्स को, एडुकेटर्स को। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच टाइप ऑफ रिसोर्सेस आर अवेलेबल ऑन ई पाठशाला? ओके, ई पाठशाला में किस तरीके का ई कंटेंट्स व रिसोर्सेस अवेलेबल है? टेक्स्ट बुक्स है, ऑडियो, वीडियो एंड फ्लिप बुक्स, ये सब अवेलेबल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 61 ई पाठशाला कंटेंट इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस अप्रोक्सीमेटली पूछा है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो मोर देन 15 इंडियन लैंग्वेजेस। इसमें जो ई पाठशाला में जो ई कंटेंट अवेलेबल है मोर देन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 15 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 का बात आ जाएगा। जो शोध सिंधु है वाज फॉर्म बाय मर्जिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंसोर्टिया? कंसोर्टिया मींस एक एसोसिएशन है, एक सोसाइटी है, तो उसमें आप देखिए, इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें इसका डेफिनेशन बोलता हूं तो तीनों को मर्ज करके शोध सिंधु प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। यूजीसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क फर्स्ट वन है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, यूजीसी इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी, यूजीसी ठीक है, इंफोनेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी, ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट का डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट का जो है इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, देखिए आई फॉर इंडियन,
N for national, D for digital library, in engineering, sciences and technology, and hyphen में AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। देन एन लिस्ट का जो है फुल फॉर्म नेशनल लाइब्रेरी, एन हो गया नेशनल, एल फॉर लाइब्रेरी, ओके, एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ठीक है, फॉर स्कॉलरली कंटेंट। तो ये तीनों को मर्ज करके शोधगंगा प्लेटफॉर्म को किया गया है। और शोधगंगा में बताया था, शोधगंगा में बेसिकली क्या है, थेसिस अवेलेबल है, डिसर्टेशंस अवेलेबल है। और ये इनिशिएटिव को जो शोधगंगा डिजिटल प्लेटफॉर्म को कौन कंट्रोल कर रहा है, इट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ना। तो यूजीसी, और एक बार बता रहा हूं, यूजीसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, नेक्स्ट वन इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेक्स्ट वन नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी फॉर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर स्कॉलरली कंटेंट, ठीक है। ये तीनों को मर्ज करके शोध सिंधु प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हायर एजुकेशन के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, यूजीसी नेट फेट में क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 63, ई पाठशाला सपोर्ट्स कंटेंट फॉर व्हिच लेवल, स्टैंड क्लासेस 1 to 12। ये जो ई पाठशाला प्लेटफॉर्म को एनसीईआरटी ने डेवलप किया है, क्लासेस 1 to 12 ई कंटेंट्स, वीडियोस, ऑडियोज, ओके, फ्लिप बुक्स, ये सब मिल जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 64, एनडीएलआई के बाद आ जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कैटर्स टू व्हिच लेवल ऑफ लर्नर्स, ओके। ये सभी के लिए जो एनडीएलआई ना, इसको डेवलप किया था आईआईटी खड़गपुर ने ना, मैं बताया था, इसको डेवलप किया था आईआईटी खड़गपुर ने। इसमें स्टैंडर्ड 1 to PhD लेवल तक कंटेंट्स अवेलेबल है, ई कंटेंट्स, ई जर्नल, ओके, ई डिजिटल बुक्स, वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 65 को चलेंगे। Which of the following is not a global MOOC platform? MOOC means massive open online course, massive open online course platform। कोर्सेरा है, इडेक्स है, यूडेमी है, विकिपीडिया नहीं है, उसमें नहीं आएगा। MOOC प्लेटफॉर्म में जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज कोर्सेरा है, ओके, इडेक्स है, यूडेमी है, मगर विकिपीडिया नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ये एक MOOC प्लेटफॉर्म नहीं है। 66, Which Indian platform offers MOOCs for higher education under the Ministry of Education? Again MOOCs का बात आता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, स्वयं पोर्टल, हायर एजुकेशन का बात आता है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस अवेलेबल, ओके, इन स्वयं पोर्टल, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 67, विद्यांजलि इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री। आज मैं एक वीडियो डाला हूं, उसमें विद्यांजलि के ऊपर में बताया था। ये जो इनिशिएटिव है, फर्स्ट स्कूल को, आपका स्कूल को आप रजिस्टर कर दीजिए। उसमें क्या है, कुछ इंडिविजुअल से, ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे एडुकेटर से कि स्कॉलर से कि एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, और ऑर्गेनाइजेशन से कि कॉर्पोरेट सेक्टर, दे एक्सटेंड हेल्प। वो आपका स्कूल को जाएंगे, बेसिकली कैरियर गाइडेंस, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, इट मींस को करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक कंटेंट्स, वो सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कैरियर गाइडेंस का बात आ जाता है, स्पोर्ट्स आ जाता है, म्यूजिक आ जाता है। तो इट मीन्स कम्युनिटी आउटसाइड वॉलंटियर्स दे गो टू द स्कूल एंड डेवलप ऑल दीज थिंग्स। अनदर इसमें विद्यांजलि प्रोग्राम में क्या है ना, इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन से, वो मॉनेटरी सपोर्ट देंगे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो विद्यांजलि प्रोग्राम बेसिकली कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, ओके, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, वॉलंटरीली, सम वॉलंटरी मेंबर्स, वो आप रजिस्टर करने के बाद, आप उसका जो पोर्टल है, आप रजिस्टर करने के बाद वो डायरेक्टली आपका स्कूल को जाएंगे, आपको एकेडमिक्स में आपको सपोर्ट करेंगे, और को करिकुलर एक्टिविटीज में आपको सपोर्ट करेंगे, और मॉनेटरी सपोर्ट करेंगे आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल के एसेट्स डेवलप करने के लिए। ये है, ठीक है। तो उसमें विद्यांजलि जन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 68, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विद्यांजलि इनिशिएटिव में बताया था, टू स्ट्रेंथन स्कूल एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी एंड प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट।
तो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, आप जब पोर्टल में आप रजिस्टर कर दिया, वो डिटेक्ट करेंगे आपका स्कूल को, और बाकी वो जाएंगे एडुकेटर्स, academician, okay, and intellectual people, organizations, corporate sector, they go to your school providing academic support, providing career guidance, providing support in co-curricular activities, providing monetary support for infrastructural development of your school. तो उनका मेन मकसद है strengthen school education, ठीक है, through engagement of community people, engagement of people, they want to support the school voluntarily. Option C is the correct answer. 69. Under which national policy was Vidyanjali revamped, relaunched? तो विद्यांजलि प्रोग्राम NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. क्वेश्चन 70. Which of the following stakeholders can participate in the विद्यांजलि इनिशिएटिव? स्टेक होल्डर्स में बताया था जो कम्युनिटी आउटसाइड पीपल है, चाहे इंडिविजुअल है, एकेडमिशियन है, एडुकेटर्स है, इंटेलेक्चुअल पीपल है, ऑर्गेनाइजेशन है. तो ऑप्शन सी, वॉलंटियर्स फ्रॉम कम्युनिटी, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर. वो एकेडमिक सपोर्ट देंगे, वो कैरियर गाइडेंस देंगे, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में सपोर्ट करेंगे, वो मॉनेटरी कंट्रीब्यूट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्कूल एंड एसेट्स ऑफ द स्कूल, ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अभी विद्यांजलि में कॉर्पोरेट सेक्टर स्कॉलरशिप दे रहा है, आप 12 पास आउट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहा है, आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, वो आपको स्कॉलरशिप देगा फॉर परस्यूइंग हायर कोर्स. नेक्स्ट वन, विद्यांजलि एम्स टू इंप्रूव, ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग आउटकम्स इन स्कूल्स. ओके, जब आउटसाइड पीपल का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, स्कूल को वो सपोर्ट करेंगे, एकेडमिक सपोर्ट करेंगे और मॉनेटरी सपोर्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 72. What are the two main verticals under the विद्यांजलि प्रोग्राम? ऑप्शन सी, स्कूल सर्विसेज एंड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर. दो चीज के ऊपर वो ध्यान देते हैं. स्कूल सर्विसेज में एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज, तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा आउटसाइड से, और स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, वो मॉनेटरी सपोर्ट देते हैं स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 73. द विद्यांजलि पोर्टल हेल्प्स कनेक्ट. जो पोर्टल में आपको आपका स्कूल को आपको रजिस्टर करना है, उसमें कनेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा, स्कूल्स विद पोटेंशियल वॉलंटियर्स एंड डोनर्स आ जाएंगे आपका स्कूल को, ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विज्ञान ज्योति इनिशिएटिव अभी आ चुका है. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द विज्ञान ज्योति? विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है, बेसिकली आपको याद रखना है, जो गर्ल्स के लिए स्टैंडर्ड 9 to 12 गर्ल्स, इसका मेन मकसद है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड डीएसटी का ये इनिशिएटिव है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. वो ये चाहता है कि स्टेम एजुकेशन, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें कैसे जो गर्ल चाइल्ड है वो अच्छा एजुकेशन लेगा, ठीक है. और बाकी फ्यूचर में वो ज्यादातर जो आईआईटीज है, ज्यादातर जो साइंस इंस्टीट्यूशन है, हमको ज्यादा फीमेल्स मिलेंगे. तो बेसिकली एम्पावर द फीमेल्स सो दैट मोर एंड मोर फीमेल्स दे कैन इन्वॉल्व इन टेक्निकल एजुकेशन एंड इन्वॉल्व इन बेसिकली साइंस, ठीक है. तो स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. तो गर्ल चाइल्ड स्टैंडर्ड 9 to 12, ये चाइल्ड को फ्री बुक किट मिलता है, स्कॉलरशिप मिलता है, वो एक्सपोजर विजिट में जाते हैं, आईआईटी, नीट और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को एक्सपोजर विजिट करेंगे. उनके लिए मेंटरशिप है, नियर बाय सपोज कॉलेज, यूनिवर्सिटीज से अच्छा फैकल्टी मेंबर जाकर उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और अदर टेक्नोलॉजी रिलेटेड में उनको इट मीन्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. मेंटरशिप मिल जाता है, इंटर्नशिप बेसिकली ट्रेनिंग, शॉर्ट पीरियड ट्रेनिंग उन गर्ल चाइल्ड को मिल जाता है स्टैंडर्ड 9 to 12. फ्री बुक्स मिल जाता है सो दैट दे कैन प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर नीट एग्जाम एंड जेईई एग्जाम, ठीक है. तो बेसिकली उसका मेन मकसद है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे मोर एंड मोर फीमेल्स एक्चुअली दे इन्वॉल्व इन इट मींस टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड साइंस सेक्टर. तो अच्छे से बताया मैं. तो उसमें टू सपोर्ट गर्ल्स इन परस्यूइंग स्टेम एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एजुकेशन एंड कैरियर्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 75. विज्ञान ज्योति इज एन इनिशिएटिव ऑफ व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता चुका हूं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी का इनिशिएटिव है, ठीक है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
76 विज्ञान ज्योति प्राइमरली टारगेट्स व्हिच ग्रुप? फीमेल स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 12। उनको फ्री बुक्स देना, उनको इंटर्नशिप, शॉर्ट पीरियड इंटर्नशिप प्रोग्राम देना, उनको एक्सपोजर विजिट में लेना, ठीक है। और उनको जो बुक्स वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे वो दे कैन प्रिपेयर प्रॉपरली फॉर नीट एग्जाम एंड जेईई एग्जाम, ठीक है। वो टेक्निकल कोर्स जो फ्यूचर में प्रोफेशनल कोर्स होता है, चाहे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करेंगे, बाकी फ्यूचर में वो इट मीन्स आईआईटी में ज्वाइन करेंगे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस उसमें ज्वाइन करेंगे। सो ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स हमको मिलेगा ये स्टेम सेक्टर में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सेक्टर में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो 77 व्हाट टाइप ऑफ सपोर्ट डज विज्ञान ज्योति ऑफर टू गर्ल स्टूडेंट्स? ये है स्टेम मेंटरिंग, आपको मैं बताया। जो स्टैंडर्ड 9 टू, ये जो गर्ल चाइल्ड है स्टैंडर्ड 9 to 12, उनको मेंटरशिप मिल जाता है नियर बाय यूनिवर्सिटी से। प्रोफेसर फैकल्टीज उनको गाइड करते हैं डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स में, मैथमेटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोजर विजिट होता है टॉप इंस्टीट्यूशंस को, इंटर्नशिप, शॉर्ट पीरियड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है। कैसे द गर्ल चाइल्ड दे एम्पावर देमसेल्व्स एंड टुमारो दे डू नॉट हेजिटेट टू जॉइन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड साइंस सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 78 विज्ञान ज्योति वॉज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया? तो एक पायलट फेज में 50 डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट उसको इंप्लीमेंट किया गया था, अभी तो वो स्प्रेड आउट हो चुका है। मैक्सिमम आप देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स में अभी ये विज्ञान ज्योति फैसिलिटी मिल रहा है गर्ल चाइल्ड स्टैंडर्ड 9 to 12 गर्ल चाइल्ड को। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट है। 79 व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस डज शोध सिंधु प्रोवाइड्स एक्सेस टू? मैं शोध सिंधु के ऊपर बताया था कि ए वाइड रेंज ऑफ ई रिसोर्सेस इंक्लूडिंग जर्नल्स एंड डाटाबेसेस। तो वाइड रेंज ऑफ ई रिसोर्सेस मिल जाता है शोध सिंधु। व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेस वो पूछा है वही है, वाइड रेंज ऑफ ई रिसोर्सेस इंक्लूडिंग जर्नल्स एंड डाटाबेसेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ NROER? NROER नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, और इसका मेन चीज है इंक्लूसिव एजुकेशन। जो डिसेबल चिल्ड्रन है, चाहे हियरिंग इंपेयर्ड है, चाहे ब्लाइंड है, तो उनके लिए भी ई कंटेंट अवेलेबल है। ये एम्फसाइज कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन, और वेराइटीज ऑफ ई कंटेंट्स अवेलेबल, ओके। तो उसका मेन मकसद है ये है ऑप्शन बी, टू ऑफर ए डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 NROER ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर व्हिच एजुकेशनल लेवल्स? ऑल स्कूल ग्रेड्स एंड सब्जेक्ट्स। भाई स्टैंडर्ड 1 to 12 ले जाइए, मगर मैं बताया इसका मेन इंपॉर्टेंस इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर इंपॉर्टेंस दिया है। डिसेबल चिल्ड्रन के लिए ई कंटेंट्स अवेलेबल है। ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड 1 to 12 आपको एवरी ग्रेड के लिए ई कंटेंट्स अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 82 कैन यूजर्स कंट्रीब्यूट देयर ओन एजुकेशनल रिसोर्सेज टू NROER? क्या हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारा ई कंटेंट को, ओन एजुकेशनल रिसोर्सेज को? कर सकते हैं, बट इट मस्ट बी रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट। हम कर सकते हैं, हम NROER को हम कंटेंट देंगे, उसको रिव्यू किया जाएगा और वो प्लेटफॉर्म में रहेगा, तब क्या होगा, स्टूडेंट्स उसको अवेल करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 NROER इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स? लिनियर करिकुलम स्ट्रक्चर, सेमांटिक मैप्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज, chronological arrangement of topics, alphabetical listing of subjects। semantic maps of organizing knowledge, semantic basically language, ठीक है। तो वेराइटीज ऑफ रीजनल लैंग्वेज में ई कंटेंट्स अवेलेबल है फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निपुण का बात आया, व्हाट डज निपुण स्टैंड फॉर? ये जो निपुण आया, FLN का बात ये बोला है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3। निपुण का नेशनल इनिशिएटिव आप देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये निपुण भारत, निपुण का जो डेफिनेशन है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर P फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, विथ U फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड N फॉर न्यूमरेसी। इसका मेन मकसद है जो अप टू बाय स्टैंडर्ड 3 child actually they must get fundamental it means literary skills and numeracy skills by grade 3। तो एज ग्रुप यहाँ पर आ जाता है 3 to 9 years आ जाता है चाइल्ड
क्योंकि ग्रेड 3 आ जाता है। जो फाउंडेशन स्टेज एनईपी में है वो फर्स्ट 5 ईयर्स 3 to 8 है, 3 to 8 है। 3 to 8 मीन्स अप टू स्टैंडर्ड 2, मगर यहां पर बोला है स्टैंडर्ड 3, तो 3 to 9 ईयर्स चाइल्ड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और हम उस ये निपुण भारत बोला है कि बाय 2026-27 में हम इसको अचीव कर लेंगे कि ऑल चिल्ड्रन बाय ग्रेड 3 दे मस्ट एक्सपर्ट इन फंडामेंटल लिटरेरी स्किल्स, बेसिक रीडिंग, बेसिक राइटिंग, ओके, बेसिक वर्बल स्किल्स और न्यूमरसी, कंप्यूटेशन, बेसिक कंप्यूटेशन स्किल्स, न्यूमररी स्किल्स के ऊपर भी एक्सपर्ट हो जाएंगे बाय 2026-27। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। 85 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द निपुण भारत मिशन टू एंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी फॉर चिल्ड्रन बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3? ठीक है, मैं अभी बताया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 86 निपुण भारत मिशन टारगेट्स चिल्ड्रन इन व्हिच एज ग्रुप? तो बाय ग्रेड 3 मींस 3 to 9 ईयर्स, क्योंकि फाउंडेशन स्टेज जो है, जो फाउंडेशन स्टेज है वो 3 to 8 ईयर्स है, अप टू स्टैंडर्ड 2 है कि नहीं, मगर यहां पर बाय स्टैंडर्ड 3 पूछा है, ठीक है। सबको बाय स्टैंडर्ड 3 ऑल चिल्ड्रन दे मस्ट एक्सपर्ट इन बेसिक इट मींस लिटरेरी स्किल्स एंड न्यूमरसी स्किल्स ना, तो यहां पर 3 to 9 ईयर्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 87 बाय व्हिच ईयर डज द निपुण भारत मिशन एम टू अचीव इट्स गोल ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरसी फॉर ऑल चिल्ड्रन बाय 2026-27? ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 88 अंडर व्हिच सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज द निपुण भारत मिशन इंप्लीमेंटेड? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में आया था, उसमें 3 स्कीम को, सर्व शिक्षा अभियान और इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्लस टीचर एजुकेशन, इन तीनों को मर्ज करके सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान को स्टार्ट किया गया था 2018 में। तो उसका एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है निपुण भारत, FLN को इंपोर्टेंस देता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 89 व्हाट इज द इंप्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ द निपुण भारत? इसका जो स्ट्रक्चर है नेशनल, ऑप्शन बी, नेशनल से स्टेट को जाएगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट को जाएगा, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक को जाएगा, ब्लॉक से स्कूल को जाएगा, ओके, पूरा एकदम हायरार्की है इसमें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 व्हिच डॉक्यूमेंट और पॉलिसी फ्रेमवर्क लेड टू द लॉन्च ऑफ द निपुण भारत? निपुण भारत लॉन्च हुआ था 2021 में, ऑब्वियसली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर में ये निपुण भारत मिशन को लॉन्च किया गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 व्हेन वाज पीएम ई विद्या प्रोग्राम लॉन्च्ड? कोविड टाइम में हुआ था, 2020 मस्ट, मई 2020 पीएम ई विद्या प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसमें डीटीएच चैनल में एवरी जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड 1 to 12, उनको पर्टिकुलर चैनल में उनको उनका कंटेंट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा, ओके, डीटीएच चैनल्स में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जहां पर थोड़ा टेलीविजन फैसिलिटी कम है, वहां पर वो रेडियो में वो कंटेंट को सुन सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो, अंडर द पीएम ई विद्या प्रोग्राम हाउ मेनी डीटीएच चैनल्स हुई? इनिशियली 12 चैनल्स, ठीक है, इनिशियली 12 चैनल्स इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर स्कूल एजुकेशन। अभी तो बहुत चैनल्स है, मगर उस समय इनिशियली जब मई 2020 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसमें 12 चैनल्स में पीएम विद्या प्रोग्राम को ऑपरेट किया गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 व्हाट इज द 1 class 1 चैनल इनिशिएटिव अंडर पीएम विद्या? तो ऑप्शन बी, ईच क्लास फ्रॉम 1 to 12 हैज ए डेडिकेटेड टीवी चैनल। एवरी स्टैंडर्ड के लिए एक टीवी चैनल है, तो उनका कंटेंट को वो सुनेंगे। ये कोविड पीरियड में स्टार्ट हुआ था, 1 class 1 चैनल इनिशिएटिव, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 94 व्हिच कंपोनेंट ऑफ पीएम ई विद्या ऑफर्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस? मूक्स का बात आ जाता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 का जो स्वयं प्लेटफॉर्म, व्हिच कंपोनेंट ऑफ पीएम ई विद्या ऑफर्स मैसिव ओपन, जब ये मूक्स का बात आते है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का बात आता है, तब हम स्वयं चैनल, जो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये जो स्वयं पोर्टल है वो उसमें मैसिव ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन इट मींस कोर्सेस है, स्टैंडर्ड 9 to 12 स्कूल लेवल में और हायर एजुकेशन में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
95. What is the significance of channel number 31 under PM Vidya initiative? Channel number 31, it is dedicated to Indian Sign Language content. Indian Sign Language content को dedicate किया है channel number 31 under the PM Vidya. Option B is the correct answer. Question number 96. Which organization developed the Jadui Pitara? Jadui Pitara obviously option B is the correct answer. क्योंकि जादुई पिटारा बेसिकली आता है 3 to 8 years चिल्ड्रन के लिए, और ये ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एम्फसाइज किया है. उसमें चाहे टॉयज के ऊपर है, एक्टिविटीज के ऊपर है, प्ले बेस्ड है, इसमें जो कंटेंट्स मिलेगा, तो 3 to 8 year चाइल्ड के लिए जादुई पिटारा को एनसीईआरटी ने ये प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है. ठीक है, और इसमें जो एम्फसाइज किया है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. उसमें आपको टॉयज है कि आपका प्रोजेक्ट से जो ये कंटेंट से उसी रिलेटेड में प्ले बेस्ड लर्निंग है तो बच्चों के लिए. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. चलो 97. व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन द जादुई पिटारा? तो ये प्ले बुक्स, टॉयज, पजल्स, बिकॉज चिल्ड्रन 3 to 8 years, पोस्टर्स, फ्लैश कार्ड्स, स्टोरी बुक्स एंड वीक वर्कशीट्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. 98. इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस इन जादुई पिटारा अवेलेबल? तो इसमें जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 13 इंडियन लैंग्वेजेस में जादुई पिटारा जो प्लेटफॉर्म में चाहे टॉयज है कि वर्क बुक्स है कि प्रोजेक्ट्स है जो बच्चों के लिए छोटा 3 to 8 years जो चाइल्ड है उनके लिए अवेलेबल है 13 इंडियन लैंग्वेजेस में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 99. हाउ डज जादुई पिटारा एम टू रिफ्लेक्ट लोकल कल्चर? जो जादुई पिटारा कैसे लोकल कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है? तो ऑप्शन ए, बाय इंक्लूडिंग रीजियन स्पेसिफिक टॉयज एंड स्टोरीज. जो रीजियन का स्पेसिफिक टॉयज है और पर्टिकुलर रीजियन का जो स्टोरीज है इसी तरीके का ये कंटेंट वो बनाया है चिल्ड्रन के लिए. तो चाइल्डहुड स्टेज में जो 3 to 8 year चाइल्ड है वो लर्न करेगा, तो उनका जो रीजियन में जो टॉयज बहुत फेमस है उस तरीके का टॉयज को वो लर्न करेगा, कैसे वो हाउ टू मेक टॉयज एंड दोस टाइप ऑफ टॉयज बेसिकली आर फेमस पर्टिकुलर इन द रीजियन. और कुछ स्टोरीज वो क्रिएट किया है रीजियन बेसिस में, सो दैट द चिल्ड्रन दे लिसन द स्टोरी एंड दे नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ देयर कल्चर. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्पित इनिशिएटिव? मैं बताया था अर्पित इनिशिएटिव जो है एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग. और ये बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में क्या है, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो फैकल्टीज है उनको रिफ्रेशर कोर्स के ऊपर ट्रेनिंग मिलता है और सर्टिफिकेट मिलता है. रिफ्रेशर कोर्स के ऊपर कंटेंट एनरिचमेंट रिलेटेड ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग इसमें इसी पोर्टल में मिलता है. और बेसिकली फैकल्टीज ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये आज 100 क्वेश्चंस था ई प्लेटफॉर्म के ऊपर. आप अभी वेट कीजिए, अभी और अच्छा टॉपिक्स में लाऊंगा. प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Okay, आज इतना ही है. थैंक यू एंड नमस्कार.